हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोहन ऐश वाइब्स। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्बर्टा के पीएनपी प्रोग्राम के बारे में और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अल्बर्टा का जो पीएनपी प्रोग्राम था इट वाज कॉल्ड एज अल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, बट नाउ दे हैव चेंज्ड इट्स नेम फ्रॉम दैट टू अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेंट प्रोग्राम, AAIP. And please note that don't confuse it from the AIP program, which is the Atlantic Immigration Program for Atlantic regions. ठीक है, नाम काफ़ी similar हैं लेकिन they are different things. Not only this, Alberta Immigration has also added 2 new streams to the program, which is the Rural Renewal Stream and the Rural Entrepreneur Stream. तो ये जो 2 स्ट्रीम्स हैं इनका मेन एम है कि जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको वो अट्रैक्ट करे इन रूरल कम्युनिटीज़ इन अल्बर्टा। रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रूरल एरियाज़ में जाके अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर वहाँ पे जाके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको बाय करना चाहते हैं। सो वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, बट आज की हमारी इस वीडियो में हम रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के बारे में कवर करेंगे बिकॉज ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग PR इन द लॉन्गर रन। एंड ऑल्सो ये वाली स्ट्रीम में स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अल्बर्टा से कि रूरल एरिया से रूरल कम्युनिटी से पढ़ाई करी है। So all in all, it's a very beneficial stream for all those people. So that's why we're going to cover this particular stream in today's video. But before we get started, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel, hit the like button and share our content. So let's get started with the rural renewal stream. So जो ये stream है, this addresses the skill shortages and labor needs in the rural Alberta. अब ये स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए आपको पहले देखना है कि वो रूरल कम्युनिटी ही होनी चाहिए। When you say rural, it means it should be outside of Calgary and Edmonton region. Another thing is कि ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनिटी बेस्ड है। So when they say community based, इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी कम्युनिटी के अंडर अप्लाई कर सकते। जो कम्युनिटी है वो डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। So you have to check कि आपकी कम्युनिटी डेजिग्नेटेड है कि नहीं, and the candidate should be endorsed by the community. So इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्राइटेरियाज हैं इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए। So when you are applying, you have to make sure that you are eligible in all those criteria. So this stream has 2 steps. In the first step, community designation process takes place, and in the second step, the candidate submits the AAIP application. So in the community designation process, जो rural communities होती हैं जो interested होती हैं designation के लिए, they apply to the government of Alberta. For that, they fill up the online application form. And once they get designated, they work with the employers to attract the newcomers to the rural areas of Alberta. जिन communities में less than 10,000 residents होते हैं, उन communities को थोड़े extra points भी मिलते हैं। Things to note here, this stream is not for part-time or seasonal workers. If you are applying for regulated occupation, then individuals nominated under this stream will still need to be licensed by PRO, which is the Provincial Regulatory Organization, or meet Alberta Industry Trade Standards. And PR approved is still required by the Government of Canada. Let's talk about the eligibility criteria to apply under this category. So when you are submitting the applications, at the time of the submission and at the time your file is being assessed, you have to take care of few things. First of all, you should be able to show कि आपका intention है to live in the rural community. Second thing is that you should have valid candidate endorsement letter, which is issued by the EDO, which is the Economic Development Organization of the designated community. आपके पास या तो full time job offer होना चाहिए या फिर employment contract होना चाहिए from your employer so that you can work in the designated community in the eligible occupation. So आप जिस भी job के basis पर apply कर रहे हैं, उस particular job के लिए अगर आपको कोई licensing requirement है या कोई registration requirement है, so at the time when you're submitting the application, आपके पास वो already सारे licenses और registrations होनी चाहिए। There are some job offers that are not eligible under this stream, as you can see on your screens: part-time or casual, seasonal employees, independent contractors, business owners, or temporary agency workers, including individuals listed as directors, shareholders, or agents of Alberta employer on the corporate registry system. Employees who work in Alberta in a place of employment that is not zoned for commercial or industrial operations, such as home-based business. Employees who do not work on premises in Alberta, such as those who work in virtual location or serve the employer by telecommunicating from the location outside Alberta. Similarly, कुछ occupations हैं जो ineligible हैं इस stream के अंदर, and as you can see on your screen, there are occupations such as legislature, escort agency managers, professional occupations in religion, authors and writers, musicians and singers, actors and comedians, painters, sculptors, visual artists,
court officers, dental laboratory bench workers, other religious occupations, athletes, casino occupations, other personnel services occupations, harvesting laborers, etc. So now let's talk about qualifying work experience requirements. So qualifying work experience requirements ये हैं कि in the past 18 months from the time you're submitting your application, you must have 12 months का full-time experience in the eligible occupation. When we are saying full-time, it means minimum of 30 hours per week. और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, या तो आप ऑलरेडी वहाँ पे रूरल कम्युनिटी पे हैं तो आप टोटल एल्बर्टा का एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस भी शो कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कहीं कुछ और किसी और पार्ट ऑफ कैनेडा में, या अगर आप इंडिया में हैं या किसी और कंट्री में. सो लाइक यू कैन शो द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस. ऑल्सो यू शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो अभी जॉब ऑफर है वो नॉक ओ में है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, स्किल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, वो नॉक ओ या ए में होना चाहिए. सिमिलरली अगर आपकी करंट जॉब ऑफर नॉक ए में है तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो नॉक ओ, ए और बी में होना चाहिए. सिमिलरली द रेस्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. प्लीज नोट, जिन भी स्टूडेंट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है इन द डेजिग्नेटेड कम्युनिटी फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन, उनको 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स. इफ योर ऑक्यूपेशन फॉल्स अंडर नॉक ओ, ए और बी लेवल, तो जो आपका CLB टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 5 है फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, whereas your NCLC test score required is also minimum 5 for each French language skill. However, if your job is for the NOC C or D occupation, तो जो आपका CLB स्कोर है वो मिनिमम 4 चाहिए फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, और NCLC स्कोर आपका चाहिए 4 फॉर ईच फ्रेंच लैंग्वेज स्किल. रही बात एजुकेशन की, आपके पास मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर कोई फॉरेन डिग्री डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए. सो अगर आपके पास फॉरेन एजुकेशन है देन यू विल हैव टू गेट योर डिग्री इवैल्यूएटेड, और उसके साथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अ कॉपी ऑफ योर ECA, विच इज़ द एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, which is issued by the organization which is designated by the IRCC. Let's talk about the settlement fund. So if you, at the time of the application, if you are residing in Canada but not working, or if you're not residing in Canada, then you will have to show कि आपके पास enough settlement fund है. As you can look at your screens, कि अगर आप number of family members 1 है और population है less than 1000, then you have to show that you have at least $8,922. And similarly, अगर population है 1000 to 30,000 के बीच में, then you have to show that you have at least $10,151. So similarly, बाकी भी आप देख सकते हैं, depending on the family members, depending on the population, आपको कुछ settlement fund show करना है. So now let's talk about how to apply. So जब आप apply कर रहे हैं, you have to make sure कि at a time आपकी एक ही application in process है under AAIP category. Also आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है. So before you're applying, make sure reading all the terms and conditions. Second चीज़ है, you have to make sure that you are eligible, as in you meet all the eligibility criteria for the rural stream, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों को आप इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल और कोई चीज़ मिसिंग है, देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मीट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स. चीज़ है, आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें टाइम लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फॉरेन एजुकेशन है और आपको उसको अपनी एजुकेशन को असेस करवाना है, उसमें टाइम लग सकता है. एंड सिमिलरली अगर आपकी कुछ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, आपने वो वाले टेस्ट देने हैं, उनका रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है. तो ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो आप पहले से अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखिए, सो दैट व्हेन यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रेडी, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड. ये जो आप एप्लीकेशन है वो आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे यूजिंग द AAIP ऑनलाइन पोर्टल. ये एप्लीकेशन मेल में नहीं जाती है, ये एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू नहीं होती है, ये आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही भरनी है. अब अपनी एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी ऑनलाइन पोर्टल पर ही वो आपको एक चेकलिस्ट दे देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने चाहिए. सो वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे. उसके बाद यू विल सबमिट द एप्लीकेशन, पे द फीस, और वहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा. रही बात आपके डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन की, बेसिकली यू विल बी नोटिफाइड अबाउट योर डिसीजन ऑफ योर एप्लीकेशन वाया ईमेल, and if your application is approved you will become a provincial nominee, and उसके बाद you will get a nomination package via email जिसमें you will get the information on how to apply for your PR to IRCC. Once you get nominated, you have to take care of few things. पहली चीज़ है that you should apply for your PR within 6 months after you become the nominee.
to get nominated, you have to take care of few things. First चीज़ है कि you should apply for your PR within 6 months after nomination. सेकेंड चीज़ है अगर आपके कोई पर्सनल सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आए, यू विल हैव टू अपडेट AAIP एंड द फेडरल गवर्नमेंट अबाउट दोस चेंजेस. तीसरी चीज़ है व्हाइल योर एप्लीकेशन PR एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस, यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटस टू लिव एंड वर्क इन अल्बर्टा. चौथी चीज़ है कि AAIP कैन विड्रॉ योर नॉमिनेशन एट एनी टाइम इफ दे फील दैट यू डोंट मीट द कंडीशन ऑफ नॉमिनेशन एनी मोर, या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है. तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. तो गाइस ये तो थी वीडियो आज की जिसके ऊपर हमने बात करी अल्बर्टा PNP प्रोग्राम के बारे में और उसमें जो नई स्ट्रीम लॉन्च हुई हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम. ये काफ़ी एक अच्छा और आई वुड से इनोवेटिव तरीका है टू माइग्रेट टू कनाडा एंड टू गेट योर PR सॉर्टेड. अगर आपको फिर भी कोई और क्वेश्चंस हैं इस स्ट्रीम से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या PNP प्रोग्राम से रिलेटेड, प्लीज चेक आउट आवर PNP सीरीज जो हमने बनाई है. एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द कंटेंट. इसके साथ हम एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम,